And as you girls must have guessed, what is that art that we need to master? The art of losing things. And in the first meaning, surface meaning, in literature you have the first meaning which we call the surface meaning. Surface meaning means first meaning, जो बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहा है. फिर पोएम की हमने डीपर मीनिंग में जाना होता है, उसकी डीपर इन अंडरस्टैंडिंग के लिए. So he says that, she says, Elizabeth Bishop, she says that the art of losing isn't hard to master. She says that man considers that loss of anything is very difficult to bear, to tolerate. But the poem teaches us that losing is an art, and mastering this art, master means to become experts in the art of losing things, is the requirement for a healthy and happy life, टेंशन फ्री लाइफ. लेजर में उन्होंने क्या बताया? टेंशन फ्री लाइफ का रास्ता क्या है? बी क्लोज टू नेचर. नॉट जस्ट द नेचर इन फ्लावर्स एंड ट्रीज, plants and birds, the nature within your heart, the nature that tells you to love, that tells you to be connected with other people. वो वाली मोहब्बत नेचर के साथ, सिर्फ बाहर के पत्ते फूल पौधों में नहीं, अपने आप के साथ, दूसरे इंसानों के साथ मोहब्बत करना, सिंप्लिसिटी से, सच्चाई से. और वो तरीका है टू लिव अ लेस स्ट्रेस्ड लाइफ की स्ट्रेस को कम करने के लिए. अब इस पॉइंट में आपको मैं वही पॉइंट बता रही हूँ कि हाउ वी हैव टू मेक कनेक्शंस इन द आइडियाज़ इन द पोएम्स. सो इन दिस पोएम शी इज़ सेइंग दैट one way to relieve the unnecessary stress in life is to accept the loss of things. And she says, begin with the small things. So many things seem filled with the intent. Intent means that they are bound to be lost. They will be lost. अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं वो गुम हो जाती हैं. That their loss is no disaster. And usually when you lose them, you will realize that it wasn't a big disaster. Disaster means destruction or a big loss. Lose have something every day. एंड लुक एट द टोन. अगर अब हम देखें कि टोन क्या है इसकी, मुझे लगा था, मैंने नोटिस किया था, मैंने आपसे शेयर भी किए हैं. देर आर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टोन. अब मुझे इसकी टोन शुरू में लग रही है कॉन्वर्सेशनल, जैसे बातें कर रही है ना. कॉन्वर्सेशनल है, नॉन सीरियस है, ह्यूमरस भी है. लूज समथिंग एवरी डे, देखेंगे ह्यूमरस भी है, आयरॉनिक भी है ना, तंज भी है इसमें थोड़ा सा. ये शायद ह्यूमर ज़्यादा है. आपको क्या लग रहा है? लूज समथिंग एवरी डे ह्यूमरस है या आयरॉनिक है? चलो ह्यूमरस कह लेते हैं. एक्सेप्ट द फ्लस्टर मीन्स कन्फ्यूजन, एजिटेशन. कीज़ नहीं मिल रही, डोर कीज़ नहीं मिल रही, कार कीज़ नहीं मिल रही, फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा. एक्सेप्ट द कन्फ्यूजन, फ्लस्टर ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, द आर बैडली स्पेंड. कोई कभी हमारा टाइम बड़ा बुरा गुजरता है. द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर. एक्सेप्ट कर लें इन चीज़ों को. टेक दीज थिंग्स इन योर स्ट्राइड. स्ट्राइड मीन्स कि जस्ट बी ओके. Just face it and just accept it that there are going to be these bad things in life and it's okay. Everyone is having them. We are not alone. ऐसे सोचें. Then practice losing father. उसके बाद आप बड़ी चीज़ें प्रैक्टिस करें लूज करना. It's very humorous but it's a very deep message there. Losing faster. और भी ज़्यादा चीज़ें भी लूज़ करें. प्लेसेस एंड नेम्स, नाम भूल जाते हैं, जगह भूल जाती हैं. वेयर इट वॉज यू वेंट, भूल जाता है कि हम टू ट्रैवल कहाँ गए थे. 2 साल पहले हम कौन से नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे सैर करने के लिए. None of these will bring disaster. He says you forget and you will notice that nothing is such a big loss. In fact, the loss of anything, of your memory, of some day-to-day items, which you find are very indispensable, yet when they are lost, life is okay, you are okay. I lost my mother's watch. Mother's watch, you see some precious memories are associated with mother's watch, but she says that she lost that watch. And look, my last or next to last of 3 loved houses went. So she changed different houses, and those last 3 houses she had to leave behind. The art of losing isn't hard to master. You see again the technique, the poetic device of repetition. The tone is conversational, humorous, non-serious, as well as thoughtful. Thoughtful भी याद रखें. फिर आप रेपिटिशन को नोटिस करें. I lost 2 cities. ठीक है, 2 cities उसने छोड़े, lovely ones, जिनसे उनको मोहब्बत थी. एंड वास्ट, और उसके बाद सम रियल्म्स. फिर उसने एक रियल्म होता पूरा बड़ा सारा टेरिटरी एरिया. आई ओन्ड
2 रिवर्स, अ कॉन्टिनेंट, फिर उसने जर्नी किया, ट्रैवल किया और एक पूरा कॉन्टिनेंट छोड़ के वो दूसरे कॉन्टिनेंट में चली गई. सपोज साउथ एशिया से निकल के आप यूरोप चले जाएं या यूरोप से निकल के आप अमेरिका चले जाएं. I miss them, she acknowledges the truth कि she misses them, but it wasn't a disaster. But the point is that no loss was such a big loss that it can't be overcome. And in the closing stanza, she says, even losing you means her friend, her beloved friend, or maybe her anyone who is close to her heart. द जोकिंग वॉइस, उसको उसने पेरेंथिसिस कहते हैं ना, ब्रैकेट को कहते हैं, तो पेरेंथिसिस में उसने क्या कहा कि द जोकिंग वॉइस, अ जेस्चर आई लव, कि ये जो कोई भी है उसका फ्रेंड है जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई क्लोजेस्ट कोई भी हो सकती है उसकी लाइफ में रिलेशनशिप. शी हैज़ लॉस्ट दैट रिलेशनशिप ऑल्सो. आई शांट हैव लाइड, शी सेज दैट शी लव्ड हिम, but she will not lie. It's evident. Evident means clear. The art of losing is not too hard to master. Still, she says that it's not hard to master the loss of that beloved person. Though it may look like, write it means note it like a disaster. So that's the fact of life, that even when we consider that the loss is too big, too huge, will never be overcome, still, life is designed by God in such a way that no loss is the final loss. No loss is the ultimate loss, because you see, letting go is an important part of life. We all have to leave our this world. We all have to leave this world. Remember, we all have to die one day. सो इज़न्ट इट राइट. और आप देखिए, मैंने हदीस मुबारक भी पढ़ी हुई है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इस दुनिया में ऐसे रहें जैसे तिनका एक नदी के ऊपर से गुजरता है. यानी वो तिनका ऊपर से गुजर जाता है. लाइफ के अंदर इतना वो इन्वॉल्व होना इस सेंस में कि जी आई ओन दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर माइन एंड आई एम नेवर गोइंग टू लूज दीज थिंग्स. Not in that sense. Just be a part of life, go with the flow, and enjoy life as it comes to you, and enjoy the things that you can enjoy, and don't worry about the things that don't come your way. That's the art of losing things. Art of losing things के लिए आप synonyms लिखें अभी, शाबाश, अपनी पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में है उसके लिए आप लिखें. letting go. letting go के अलावा मैंने यहाँ लिखा था acceptance, रेजिग्नेशन. सो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख के भेजती हूँ. मैंने फॉर्म किया था कि वाई इज़ लर्निंग द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, ऑफ लेटिंग गो, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन वाइटल फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. ठीक है ना. जब आप when one is hopeful, positive, looking for the best things in life, as well as ready, open to the disasters of life, losses and sorrows of life, that is a strong man. The most trifling incident and the greatest disaster should be faced without tears, with courage and bravery. The art of losing, in fact, means to live life hoping for the best and to be ready to face and accept the worst. So here we can stop our discussion, and I am open to your questions, girls. If you have any questions, you may ask. जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक. एनीथिंग यू वांट टू आस्क. आपको पोएम कैसी लगी? चलो, वन आर्ट. आपने कभी ऐसा आइडिया सुना है कि इफ समथिंग गेट्स लॉस्ट डोंट वरी अबाउट इट? जी सुनहरा. So many girls are. जी 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 जी. So many girls are listening. I am waiting for your answer. यस मैम. मैम ये एलिजाबेथ बिशप कौन सी राइटर है? अमेरिकन राइटर है एंड विक्टोरियन राइटर है. एलिजाबेथ बिशप जो है ना बेटा, वो है मॉडर्न राइटर. मुझे आपका नाम नज़र नहीं आ रहा. मैंने कुछ टच कर दिया. अब वो बच्चे मेरे को आएंगे तो बताएंगे कि कहाँ से टच करूँगी. मलिहा. जी मलिहा. जी मलिहा. एलिजाबेथ बिशप जो है ना, मानो वो मेन पेज कहाँ पे है? अच्छा.
Maliha, this is modern British poet, but I will check again. मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मैंने इसे पढ़ा एंड एज फार एज आई रिमेंबर, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑन योर पार्ट मलिहा. आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन. जो बच्चा क्वेश्चन पूछना सीख जाता है ना, वो बच्चा इंटेलिजेंट बन जाता है. तो मलिहा, दिस इज़ मॉडर्न 20th सेंचुरी. मॉडर्न मीन्स 20th सेंचुरी. ब्रिटिश पोइट है, लेकिन मैं फिर चेक करूँगी, एंड इफ आई एम मिस्टेकन तो आई विल करेक्ट द मिस्टेक. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके मैम. ये तो बताया ही नहीं कि आपने ये सुना था कभी, ये जो आर्ट इसमें जो इन्होंने आइडिया दिया है, कभी आपने ये पॉइंट सुना है कि डोंट वरी अबाउट द थिंग्स व्हेन दे गेट लॉस्ट? डू यू एग्री विद दिस यू शुड ऑल्सो थिंक. क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे हैं हम लिटरेचर में. एनालिसिस हमें क्या सिखाता है? क्रिटिकल थिंकिंग. दुनिया कहती है इस वक्त कि क्रिटिकल थिंकिंग सीखें. तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आप बताएं कि डू यू एग्री विद एलिजाबेथ बिशप? लूजिंग, एक तो दो बातें आपने बतानी है कि नंबर 1, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, एंड नंबर 2, वाई इज लर्निंग द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स इम्पॉर्टेंट? हाउ डज इट मेक लाइफ मीनिंगफुल? ठीक है, इन पे हम सोचेंगे और इन पे आप आंसर्स लिख लेना. मैं भी लिख के आपको टेक्स्ट कर देती हूँ. ओके गर्ल्स? ओके मैम. सो अल्लाह हाफिज़. सी यू टुमारो इंशाल्लाह, सेम टाइम. यस मैम. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.